Sagittal section. This is a revision lecture, so we will not go into each and every bits of details. Those who want details to be revised, they can go through YouTube video again. You can see, you can download YouTube video. You can even without downloading, you can bookmark. You can make a list of minutes and seconds, the part of the lecture which you want to understand properly. You can skip remaining minutes. You can make a note of those minutes to see exact diagrams or exact tables or anything that is discussed in detail in proper lectures. Okay, so this you need to do, ये आपको करना ही पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत बार देखनी पड़ती है। मुझे खुद को अपने लेक्चर्स में से भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, तो आपको तो देखनी पड़ेगी डेफिनेटली। दैट्स फाइन। सो दिस इज़ योर डायनकेफेलॉन। एक काम करते हैं, पहले हम ओरिजिनल जो डिसेक्शन व्यूज़ है वो देख लेते हैं, क्योंकि अगर वो भूल गए तो पंगा हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू सी रियल व्यूज़ फर्स्ट, कि ये आज का प्रैक्टिकल है ऐसा समझ लो। जैसे अभी ऑनलाइन डेमो तो हो नहीं सकता इसका, तो ये ऑनलाइन डेमो जैसा ही कुछ है। तो दिस इज़ योर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। समझ में आया? दिस इज लेफ्ट सेरिब्रल एंड दिस इज लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ओके, दिस इज लेफ्ट हाफ ऑफ डायनकेफेलॉन। ये पूरा, दिस होल what I am indicating by arrow દેખાય છે મેડમ? This arrow is your left half of diencephalon. This is left cerebellar, this is left cerebral hemisphere. So in the exams, when you hold this specimen, you have to speak like this. Hold in your left side anatomical position. This is anterior pole or frontal lobe. This is posterior pole or occipital lobe. ऊपर parietal और lateral side में temporal आएगा। So you have to speak like this. This is left cerebral hemisphere. ठीक है? अब इसमें ये पूरा this whole white matter, gray matter collection, this is your diencephalon. ठीक है? And this sulci and gyri, that is your tail and cephalon. So from tail and cephalon these things develop. Let's try to see that embryo diagram if available. So I am referring this because everywhere you will find single word in description. कुछ भी एक नाम दे दिया होता है और उसकी एम्ब्रियो आपको याद रखनी होती है। So we will cover that in embryo, but here see, this is your whole neural tube. यहाँ पे नीचे स्पाइनल कोड आएगा। So whole neural tube divides in 3, forebrain और prosencephalon, ये पूरा, ये mesencephalon, this whole is rhombencephalon. The prosencephalon has divided in 2 parts, telencephalon and diencephalon. So हम ये पढ़ रहे हैं अभी diencephalon. Mesencephalon becomes your midbrain, and this rhombencephalon divides into 3. This is medulla, this is pons, और पीछे से एक ये टुकड़ा जाएगा, that is your cerebellum. Medulla, pons and cerebellum. Now this whole will have 3 flexures, 3 curvatures, acute curvatures: cervical curvature, cephalic curvature and pontine curvature. ठीक है? Cervical flexure, cephalic flexure, pontine flexure. These are the 3 acute turns of the neural tube. फिर ये पूरा झमेला एक इकट्ठा हो जाएगा. This left and right parts will merge, and this telencephalon will grow larger enormously, extensively, and it will cover this whole structure. That means cerebral cortex is covering whole diencephalon and whole brain stem.
ये तीनों आपके ब्रेन स्टेम हो गए, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम का अपर पार्ट है और यहाँ से आपके थैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस, दीज थिंग्स आर डेवलप फ्रॉम दिस डायनकेफेलॉन। और ये पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनके इस पूरे को कवर करेगा। एंड दिस फ्लेक्सर्स, यहाँ पे जो रिसेस बच गए, दिस कैविटीज दे विल बिकम योर वेंट्रिकल्स। यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल, फिर थर्ड वेंट्रिकल और फिर फोर्थ वेंट्रिकल एंड देन सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पूरा फंडा आपको याद रखना है। चलिए वापस आते हैं। दिस इज फ्रंटल लोब, दिस इज कॉर्पस कैलोजम, दिस होल लार्ज, ठीक है। इसके पार्ट्स के नाम रोस्ट्रम, जेनो, ये एक्यूट टर्न जो है दैट इज जेनो, फिर ये पूरा बॉडी एंड बिहाइंड दिस वन इज प्लेनियम, ठीक है। फिर ये कट गया है दैट इज योर सेप्टम पेलुसिडम। ये वाइट टिश्यू जो है इसको कवर करती है दैट इज सेप्टम पेलुसिडम। ये नीचे अटैच होगा फोर्निक्स के साथ। दिस वाइट एरिया इज योर फोर्निक्स। आई विल शो यू डायग्राम ऑफ फोर्निक्स जस्ट नाउ। तो फोर्निक्स जो है इसके कॉलम यहाँ पे टर्मिनेट होते हैं। दिस इज योर एंटीरियर कमीजर। जब मैं एरो हटा दूंगा तो आप अच्छे से देख सकते हैं। दिस इज एंटीरियर कमीजर, दिख रहा? ओके। फ्रॉम एंटीरियर कमीजर दिस इज लेमिना टर्मिनालिस। लेमिना टर्मिनालिस इज मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब, ठीक है, मोस्ट क्रेनियल एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब। लेमिना टर्मिनालिस से फिर यहाँ से जब आप जाते हो तो ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स एंड ऑप्टिक ट्रैक, दिस इज कट पोर्शन ऑफ ऑप्टिक ट्रैक, ठीक है। ये जो रिसेस दिख रहा है, दिस डिप्रेशन, दिस खांचा जो दिख रहा है दैट इज रिसेस, ऑप्टिक रिसेस। एंड समवेयर हियर यू विल हैव योर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो इसमें कट गई है, दिख नहीं रही। पिट्यूटरी से पीछे जाएंगे तो योर ट्यूबरल एंड ट्यूबरल रीजियन ऑफ हाइपोथैलेमस। सी दिस इज योर थैलेमस। ये पूरा एरो दिख रहा है, ये अंडा जो है दिस इज योर थैलेमस। और बीच में जो ये टुकड़ा है दैट इज एडेशन, इंटरथैलेमिक एडेशन। तो ये लेफ्ट साइड का थैलेमस ऐसा ही राइट साइड का होगा और वो दोनों यहाँ से चिपके होंगे। दिस इज इंटरथैलेमिक एडेशन, ठीक है। दिस वन इज फोरामेन ऑफ मोनरो और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। दिस इज योर लेटरल वेंट्रिकल, ये पूरा इसके 5 हॉर्न, ठीक है। दिस होल इज योर लेटरल वेंट्रिकल और इसके इंटीरियर हॉर्न से, ये लेफ्ट साइड का है तो राइट साइड का भी ऐसा ही होगा। दोनों वेंट्रिकल के इंटीरियर हॉर्न से यहाँ पे एक फोरामेन खुलता है, दिस इज फोरामेन ऑफ मोनरो और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। यहाँ से ये पूरा थर्ड वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। लेफ्ट थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड राइट थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लेफ्ट राइट दोनों की ये वॉल हो गई, लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। तो ये पूरी कैविटी थर्ड वेंट्रिकल है और ये थर्ड वेंट्रिकल के रिसेस बन गए, ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक। एंड दिस इज योर पीनियल ग्लैंड, पीछे दिख रहा है, दिस इज योर पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के 2 कमीजर, ऊपर वाला एंटीरियर कमीजर, नीचे वाला पोस्टीरियर कमीजर, ठीक है। तो इसके नाम है हेबेन्यूलर एंड पोस्टीरियर कमीजर। ये जो है नीचे वाला दैट इज हेबेन्यूलर कमीजर और ये है पोस्टीरियर कमीजर। दैट मीन्स ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, इट मीन्स दिस इज हेबेन्यूलर, एंटीरियर का दूसरा नाम है हेबेन्यूलर और पोस्टीरियर का नाम है पोस्टीरियर, ठीक है। तो हेबेन्यूलर कमीजर एंड पोस्टीरियर कमीजर। फिर हेबेन्यूलर कमीजर से नीचे जाएंगे, अरे उल्टा हो गया, ऊपर वाला हेबेन्यूलर है, नीचे वाला पोस्टीरियर है, ठीक है, सॉरी। ऊपर वाला हेबेन्यूलर कमीजर, नीचे वाला पोस्टीरियर कमीजर और यहाँ पे हेबेन्यूलर ट्राइगोन जिसमें दोनों न्यूक्लियाई लॉज होते हैं।
तो दिस इज हेबेन्युलर ट्राइगोन एंड कमीजर कट गया। फिर ये जो गैप दिख रहा है दिस इज योर सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये पूरा थर्ड वेंट्रिकल जो यहाँ फोरामेन ऑफ मोनरो से शुरू हुआ, ये थर्ड वेंट्रिकल पूरा यहाँ पे एंड हुआ। दिस इज सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और यहाँ से अपना फोर्थ वेंट्रिकल शुरू हुआ। दिस इज रोम्बोइड शेपेड कैविटी कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, and this is your superior medullary velum which is covering fourth ventricle. inferior medullary velum यहाँ पे होता है, वो दिख नहीं रहा। तो this is your fourth ventricle and this is superior medullary velum. ये पूरा जो है this is mid brain और उसका टेक्टम, ये दो एलिवेशन दिख रहे हैं, ये छोटा सा और ये छोटा सा, it is colliculi. सुपीरियर कोलिक्यूलस, इंफीरियर कोलिक्यूलस, ये पूरा कटा हुआ है। कोलिक्यूलस के आगे एक्विडक्ट, ठीक है, एक्विडक्ट के आगे दिस इज योर सेरेब्रल पेडंकल। ये पूरा जो पार्ट है दिस इज सेरेब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन। ये हॉरिजॉन्टल फाइबर, ये पूरा पोन्स है, ये बड़ा। दिस इज मिड ब्रेन, बट इसका कौन सा पार्ट? सेरेब्रल पेडंकल। इट कंसिस्ट ऑफ, बताओ बताओ, सबस्टेंशिया नाइग्रा, क्रॉस सेरेब्री एंड टेगमेंटम। पहले आएगा टेगमेंटम, फिर सबस्टेंशिया नाइग्रा होगा, फिर होगा क्रॉस सेरेब्री। ये तीनों को मिला के बोलेंगे सेरेब्रल पेडंकल। ये सेरेब्रल पेडंकल से ये पूरा लटकता होता है। पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय सेरेब्रल पेडंकल टू द ब्रेन स्टेम। ओके, फिर ये तीनों में से सेरेबेलर पेडंकल जाएंगे जो इसमें नहीं दिख रहे। मेड्यूला, यहाँ पे मेड्यूला, ये पोन्स एंड मिड ब्रेन, तीनों में से एक एक कनेक्शन जाएगा अपने सेरेबेलम में। दैट इज योर सेरेबेलर पेडंकल्स। सभी पेडंकल के फाइबर के नाम, उसके ट्रैक के नाम आपको याद रखने होते हैं। इसके टेबल दिए होते हैं पर वो इकट्ठे याद नहीं रहते। आपको पहले एनाटॉमी समझनी है, उसकी लोकेशन समझनी है, फिर धीरे धीरे दूसरी सब नॉलेज मिला के उसके फाइबर बनाने हैं। ठीक है, so this much is your real diencephalon. okay, किसी को इसमें कोई डाउट है तो फिर लास्ट में पूछ लीजिएगा। Now this is your coronal section. हम देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं? आगे से। We are viewing this from, नहीं, एक मिनट, पीछे से देख रहे हैं, ठीक है। We are viewing this from behind. This is your cerebellum, इसकी posterior surface. These are the two colliculi and this is your pons. okay, these two are vertebral artery, ये मिलके बनता है basilar artery. okay, these two are optic tract. This is your hippocampus, subiculum and hippocampus. This is your lateral ventricle, anterior horn of lateral ventricle, ये मिलके यहाँ पे foramen of Monro दोनों साइड। This blue one is your third ventricle, एकदम मीडियन प्लेन में midline slit, that is your third ventricle जो ब्लू कलर का है। This horizontal one is your corpus callosum जो कटा हुआ है। This is septum pellucidum और ये दोनों फोर्निक्स के पार्ट हैं, बॉडी ऑफ फोर्निक्स। ये जो टिश्यू दिख रही है दैट इज योर कोरोइड प्लेक्सस, ग्रेन्युलर टिश्यू। कोरोइड प्लेक्सस इज मेड अप ऑफ कैपिलरी वास्कुलर प्लेक्सस प्लस एपेंडाइमा दैट इज सिक्रेटरी एपिथेलियम।
ये दोनों मिलके कोरोइड प्लेक्सस बनता है एंड दैट विल सीक्रेट योर CSF विच विल सर्कुलेट इन दिस वेंट्रिकल्स। तो ये पूरे वेंट्रिकुलर कैविटी में हर जगह पे इसकी एक लेयर बनी होती है, दैट इज कोरोइड प्लेक्सस लेयर। इट इज लाइनिंग वेंट्रिकल्स फ्रॉम इनसाइड। डिसेक्शन में कहीं पे भी जब आप ओपन करेंगे तो कहीं कहीं ये आपको दिखेगा। दिस एरिया हियर, दिस इज योर इंसुला। दिस पोर्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच इज इनसाइड, ये पूरा कॉर्टेक्स बाहर होता है, बट ये टुकड़ा जो अंदर घुस गया दैट इज इंसुला। फिर ये थर्ड वेंट्रिकल से आप इस तरफ चले आओ, दिस इज योर थैलेमस। फिर ये बेसल गैंग्लिया है, बेसल न्यूक्लियाई। यहाँ पे हाइपोथैलेमस नहीं दिख रहा, थोड़ा सा पीछे कटा होता तो दिखेगा। यहाँ पे एक्सटर्नल कैप्सूल, क्लोस्ट्रम और एक्सट्रीम कैप्सूल, ये तीनों लेयर होते हैं। ओके, इसमें अब इतना ही। ये स्कीमेटिक डायग्राम देख लो। दिस इज हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ओके, जूम नहीं हो रहा। चलिए, ये हम लिम्बिक सिस्टम और वो बाद में देखेंगे। सिर्फ ये वेंट्रिकल देख लो, एंटीरियर हॉर्न, बॉडी, पोस्टीरियर हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न। ये पूरी कैविटी जो है दैट इज योर लेटरल वेंट्रिकल, दोनों साइड में। और ये जो कर्वेचर दिख रहा है दैट इज हिपोकैम्पस, फिम्ब्रिया एंड हिपोकैम्पस और फिम्ब्रिया मिलके यहाँ पे फोर्निक्स बनता है। नीचे देखो, ये दिस इज योर हिपोकैम्पस, फिम्ब्रिया, दोनों तरफ से दोनों फिम्ब्रिया मिलते हैं। यहाँ पे क्रश ऑफ फोर्निक्स, बॉडी ऑफ फोर्निक्स एंड कॉलम ऑफ फोर्निक्स। ये पीछे से आया, ऊपर गया और ये आगे से फिर डिवाइड हो गया। तो ये पूरा को कनेक्शन को बोलते हैं फोर्निक्स। पीछे होता है क्रश ऑफ फोर्निक्स, फिर बॉडी ऑफ फोर्निक्स और आगे होता है कॉलम ऑफ फोर्निक्स। क्रश, बॉडी एंड कॉलम। तो कॉलम ऑफ फोर्निक्स जो है यहाँ पे अपना इंटीरियर कमीजर और लेमिना टर्मिनालिस मिलता है, ये दोनों यहाँ से जुड़ते हैं। कुछ चीज़ें आपको बार बार देखनी होगी, बाद में समझ आएगी। This is schematic overview of all ventricles। ये पूरा डायग्राम आपको हर एक वेंट्रिकल में समझना है, यहीं से लिखना बोलना जो भी है यहीं से शुरू करना है, ठीक है। इसमें हर एक वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट हेमिस्फीयर, दिस इज राइट हेमिस्फीयर, और ये जो कैविटी है दैट इज इनसाइड। यहाँ पे जो दिखाया है वो पूरे ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। सो ये पूरा सी शेप का जो है, यहाँ पे उसका टेल है, ये पूरा थर्ड वेंट्रिकल है। इसके पार्ट्स एंटीरियर हॉर्न, बॉडी, ये पूरा पोस्टीरियर हॉर्न और ये इंफीरियर हॉर्न, ठीक है। These are the parts of lateral ventricle, मीन्स लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये राइट वाला लेटरल वेंट्रिकल है। दोनों यहाँ पे मिलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, एंड देन दे विल बिकम वन इनसाइड दिस थर्ड वेंट्रिकल। अभी हमने देखा लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, इट इज मेड बाय थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और ये थर्ड वेंट्रिकल के जो भी एक्सटेंशन है, यहाँ पे दो, दे आर रिसेसिस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, सुप्राऑप्टिक, प्रीऑप्टिक, पिनियल एंड सुप्रापिनियल। ग्लैंड के नाम और ग्लैंड के आसपास के दो रिसेस, सुप्रापिनियल, पिनियल, सुप्राऑप्टिक, प्रीऑप्टिक, सुप्रापिनियल एंड पिनियल रिसेस। ये चारों दो ग्लैंड के दो रिसेस हो गए। फिर ये दिस इज योर सेरेब्रल एक्वीडक्ट, यहाँ से थर्ड वेंट्रिकल खत्म हुआ, सेरिब्रल एक्वीडक्ट से ये पूरा नीचे आया,
मेड्यूला में। ये है फोर्थ वेंट्रिकल विच इज़ रोम्बोइड शेपेड कैविटी। अब फोर्थ वेंट्रिकल के भी ऐसे ही रिसेस होते हैं, लेटरल रिसेस, मीडियन रिसेस, वो हम दूसरे डायग्राम में वेंट्रिकल की शॉर्ट नोट में देखेंगे। तो ये पूरा स्कीम आपको समझ में आना चाहिए, ये आपके CSF सर्कुलेशन में भी आएगा, ठीक है। तो व्हेन यू राइट CSF सर्कुलेशन यू शुड हैव दिस ओरिएंटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल वेंट्रिकल्स। तो ये डायग्राम कहाँ कहाँ यूज़ होगा? शॉर्ट नोट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, शॉर्ट नोट ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, शॉर्ट नोट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। ये तीन वेंट्रिकल की अलग अलग शॉर्ट नोट प्लस चौथा दैट इज CSF सर्कुलेशन, जिसमें यह सभी एक साथ आएगा। इन योर चौरसिया दिस इज ड्रॉन इन सजाइटल सेक्शन, पूरे सर्कुलेशन का सजाइटल सेक्शन दिया हुआ है, ये इस तरह से होता है। अब इसको इसके रिलेशन में समझ लो। ये साइड में आपके लेटरल वेंट्रिकल है और यहाँ पे आपका फोरामेन ऑफ मोनरो है, ठीक है। यहाँ से लेटरल वेंट्रिकल ख़त्म हुआ और ये आपका पूरा थर्ड वेंट्रिकल हो गया। दिस इज राइट हाफ राइट बाउंड्री ऑफ थर्ड वेंट्रिकल मेड बाय थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और दोनों थैलेमस यहाँ पे जो जुड़ते हैं दैट इज इंटरथैलेमिक एडेशन। तो ये एडेशन जो है वो थर्ड वेंट्रिकल में इसका गैप होगा। दिस एडेशन विल प्रोड्यूस गैप इन द थर्ड वेंट्रिकल। ये दिख रहा है, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल और इसमें यहाँ पे छोटा सा फोरामेन जैसा बन रहा है, दैट इज ड्यू टू इंटरथैलेमिक एडेशन। कोरोनल सेक्शन, राइट थैलेमस लेफ्ट थैलेमस, और इसके बीच में यहाँ पे इंटरथैलेमिक एडेशन, और ये पूरी कैविटी दैट इज योर थर्ड वेंट्रिकल। चलो थर्ड वेंट्रिकल हो गया, फॉर्निक्स देख लेते हैं। दिस इज हिपोकैम्पस, इट इज पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बस का मतलब होता है राउंड और सर्कल, जिसमें स्ट्रक्चर्स जो है वो सर्क्यूलर राउंड शेप में लगे रहते हैं, दैट इज लिम्बस। आई बॉल में भी नाम आता है लिम्बस। तो ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है हिपोकैम्पस। यहाँ से एक्सटेंशन जाता है दैट इज कॉल्ड फिम्ब्रिया। ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का, इसमें भी राइट फिम्ब्रिया लेफ्ट फिम्ब्रिया। फिर ऊपर जो पार्ट जाता है अपवर्ड्स दैट इज कॉल्ड क्रस। सो दीज आर द क्रूरा ऑफ फॉर्निक्स। यहाँ से यहाँ तक का फॉर्निक्स है, दिस सुपीरियर पोर्शन विच इज कनेक्टेड इज कॉल्ड फॉर्निक्स। ये टुकड़े पड़ गए उसके नाम अलग होते हैं, बट जब ये जुड़ जाता है देन इट इज कॉल्ड फॉर्निक्स। तो क्रस ऑफ फॉर्निक्स, crura of fornix is joined by commissure of fornix. This is commissural fiber and this is called body of fornix. यहाँ पे आपका थर्ड वेंट्रिकल का सुपीरियर वॉल है, इसके ऊपर सेप्टम पेलुसिडम लगा रहता है और इसके नीचे यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल लगा रहता है, ठीक है। ये दोनों लेटरल हेमिस्फीयर से, राइट लेफ्ट हेमिस्फीयर से निकल के बीच में आ गए और फिर वापस यहाँ पे डिवाइड हो गए। तो बॉडी डिवाइड्स इनटू टू कॉलम, राइट एंड लेफ्ट कॉलम ऑफ फॉर्निक्स। दिस कॉलम ऑफ फॉर्निक्स इज कनेक्टेड बाय लेमिना टर्मिनालिस। यहाँ पे कनेक्शन जो है शीट ऑफ वाइट मैटर दैट इज योर लेमिना टर्मिनालिस। और राइट हॉरिजॉन्टल जो कनेक्शन है ऐसा ही कमीशर यहाँ पे भी होगा, दैट इज योर एंटीरियर कमीशर। एंड दिस कॉलम विल डिवाइड बाइफरकेट and they terminate in mammillary body. mammillary body कहाँ पे था याद कीजिए, पिट्यूटरी के पीछे, हाइपोथैलेमस के पीछे, पोस्टीरियर इंफीरियरली, ठीक है। ये यहाँ पे ख़त्म हुआ और मेमिलरी बॉडी से वापस एक ट्रैक निकलेगा जो एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में ऐसे जाएगा,
दैट इज योर मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, अभी हवा में है, याद कर लीजिए। ओके, लेट्स नाउ रिवाइज न्यूक्लियाई एंड ओरिएंटेशन ऑफ थैलेमस हाइपोथैलेमस। इससे पहले जो रियल सेक्शन हमने देखा उस सेक्शन के नाम देख लेते हैं। जो रियल ब्रेन का सेक्शन हमने देखा उसमें कौन सी चीज़ें दिखती है। इस डायग्राम में हर एक चीज़ लिखी है पर हर एक चीज़ आपको रियल सेक्शन में नहीं दिखती। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे हमारा रूल है, बड़ी चीज़ें पहले करो, ऑब्वियस चीज़ें पहले करो, जो जल्दी दिखता है, अच्छा दिखता है, वो पहले करो और वही पहले बोलो, ठीक है। तो इस पूरे सेक्शन में सबसे अच्छा जो हमें पता है वो वहाँ से हम शुरू करेंगे। जैसे ये दिस इज ओब्लिक कोरोनल सेक्शन ऑफ फोरब्रेन, जो अभी हमने देखा वैसा ही। दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, सॉरी दिस इज थर्ड वेंट्रिकल और ये पूरा है लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है। ये है कॉर्पस कैलोजम। ये जब आपको ड्रॉ करना होता है तो ऐसा स्कीमेटिक डायग्राम आप बना के अंदर नाम डाल सकते हैं। डायग्राम की ठीक ठाक वैल्यू है बट नाम की बहुत वैल्यू है। अगर नाम सही डाले या सही बोल दिए तो पास हो गए। तो ये है कॉर्पस कैलोजम, इसके नीचे ये है सेप्टम पेलोसिडम और ये कनेक्ट हो रहा है दोनों फोर्निक्स के साथ, बॉडी ऑफ फोर्निक्स, राइट एंड लेफ्ट पार्ट। फिर ये पूरी वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल का इंटीरियर हॉर्न, ये दोनों यहाँ से कनेक्ट हो गए थर्ड वेंट्रिकल के साथ। चलिए ये क्या है बताओ। दिस इज योर थैलेमस, ये पूरा झमेला दिस इज योर थैलेमस। ये है सेरिब्रल एक्विडक्ट जो इसके साथ कनेक्ट होता है। थैलेमस के नीचे समवेयर हियर यू विल हैव हाइपोथैलेमस, यहाँ पे नहीं दिख रहा। थैलेमस की लेटरल साइड में जाएंगे तो दिस होल इज योर इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, वाइट मैटर, ये हो गई इंटरनल कैप्सूल। और लेटरली जाओ तो ये है कॉर्पस स्ट्राइटम। अब कॉर्पस स्ट्राइटम में टुकड़े हो चले, ये है कोडेट न्यूक्लियस, उसका हेड, कोडेट न्यूक्लियस की टेल यहाँ पे कहीं पे होगी, ये है उसका हेड। ये पूरा है कॉर्पस स्ट्राइटम जिसके दो पार्ट है, कोडेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो ये कोडेट का पीस यहाँ पे आया तो ये पूरा हो गया लेंटिफॉर्म। लेंटिफॉर्म के दो पार्ट, लेटरली पुटामेन एंड मीडियली ग्लोबस पैलिडस। और लेटरली जाएंगे तो एक्सटर्नल कैप्सूल, फिर वापस ग्रे मैटर दैट इज क्लोस्ट्रम, फिर वापस वाइट मैटर दैट इज एक्सट्रीम कैप्सूल, वापस ग्रे मैटर दैट इज इंसुला। तो यहाँ से अल्टरनेटली ग्रे मैटर और वाइट मैटर के रीजियन मिलते हैं। सभी के नाम वापस बोलता हूँ, यहाँ से शुरू करो, ग्रे वाइट ग्रे वाइट ग्रे वाइट देखते जाओ। थैलेमस, इंटरनल कैप्सूल, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, एक्सटर्नल कैप्सूल, क्लोस्ट्रम, एक्सट्रीम कैप्सूल एंड इंसुला। यहाँ से पूरा अल्टरनेट ग्रे एंड वाइट के सभी नाम हैं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो थैलेमस के नीचे दो चीज़ें होगी, एक होगा हाइपोथैलेमस एंड ये जो पूरा झमेला है दिस इज सब थैलेमस। सब थैलेमस हमने पढ़ा नहीं है, इसके पार्ट्स के नाम अभी बता देता हूँ। वैसे सब थैलेमस बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो मत कीजिए, चल जाएगा। अभी आपका दिमाग अगर ठीक होता है, फ्रेश होता है या कुछ करने का कीड़ा आ जाता है तो आप सब थैलेमस पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। सो दिस इज सब थैलेमिक न्यूक्लियस। सब थैलेमिक न्यूक्लियस
कनेक्टेड डाउनवर्ड्स विथ सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये हो गया अपना मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन में दिस इज योर सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा के भी दो पार्ट होते हैं, रेटिकुलेटा एंड कॉम्पैक्टा। रेटिकुलेटा एंड कॉम्पैक्टा। PR means pars reticulata and PC means pars compacta। फिर मिड ब्रेन में आगे होता है रेड न्यूक्लियस जस्ट नियर सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। अब ये तीनों को मिला के और एक बंदा रह गया, यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड जोना इंसर्टा और ZI। जोना इंसर्टा एंड सब थैलेमिक न्यूक्लियस, ये दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 चीज़ें आपको याद रखनी है सब थैलेमस में। कौन सी 4 चीज़ें? अगेन, सब थैलेमिक न्यूक्लियस, जोना इंसर्टा, फिर ये रेड न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा। अगेन, सब थैलेमिक न्यूक्लियस, जोना इंसर्टा, रेड न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये चारों मिलके सब थैलेमस बनता है। चारों के जो कनेक्शन है उसके बोलते हैं सब थैलेमिक फील्ड ऑफ फोरेल। फील्ड ऑफ फोरेल और सब थैलेमिक फील्ड, दैट इज कनेक्शन बिटवीन दिस सब थैलेमस एंड ऊपर वाले दोनों थैलेमस हाइपोथैलेमस जुड़ते हैं पूरे सब थैलेमस के साथ। ये पूरे को बोलते हैं सब थैलेमिक फील्ड ऑफ फोरेल, जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है। जब आपको सभी न्यूक्लियाई के नाम आते हैं तभी आप ये समझ सकते हैं। So this is enough. Now we will revise nuclei. न्यूक्लियाई, 3 टाइप के न्यूक्लियाई, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड ये लेंटिफॉर्म। मैं डायग्राम रखूँगा, आपको एक मिनट पूरा शांति से देखना है, फिर आंख बंद करके न्यूक्लियाई के नाम बोलने हैं। चलिए शुरू हो जाइए। Within 1 minute you should be able to speak all names. This is left thalamus. हो गया। सबसे पहले मैं इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करूंगा। वाई शेपेड इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना लूंगा, पूरे अंडे को मैं काटूंगा और उसकी आमलेट बनाऊंगा। तो ये वाई शेपेड लेमिना, इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना, 3 बड़े ग्रुप, एंटीरियर ग्रुप, मीडियल ग्रुप एंड लेटरल ग्रुप। एंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, मीडियल ग्रुप, उसमें 3 टुकड़े, मीडियल डोर्सल, मीडियल वेंट्रल एंड मिड लाइन। मीडियन में होगा मिड लाइन और मीडियल में होगा MD/MV। लेटरल ग्रुप में 2 ग्रुप करूंगा। लेटरल इज डिवाइडेड इनटू 2, ventral and lateral group. This whole lateral group is divided into 2 broad groups, ventral group and lateral group. Ventral group divided into 3, VA, VL, VP. VA, VL के साथ होगा VI, वेंट्रल इंटरमीडिएट एंड वेंट्रल लेटरल दोनों एक ही है। VP
और वीपी भी भारत पाकिस्तान में डिवाइड होगा, वीपीएल वीपीएम ऐसे ही, ठीक है। तो वीएल सॉरी वीए वीएल प्लस वीआई एंड वीपी एल वीपीएम। चलिए हो गया। और पीछे जो रह गया ये लेटरल ग्रुप में 3 बंदे हैं, एलडी एलपीपी, एलडी एलपीपी, lateral dorsal, lateral posterior and P means पल्विना। P के नीचे LGB MGB, that's your thalamus। अब जो रेटिकुलर ग्रुप बचा ये इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना दैट बिलोंग्स टू रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन में अंदर है एक सेंट्रोमीडियन रेटिकुलर न्यूक्लियस और ये बाहर एक टुकड़ा है रेटिकुलर न्यूक्लियस। तो रेटिकुलर ग्रुप के 2 बंदे, एक बाहर आया और एक ये अंदर आया। अब कहाँ से कौन से कनेक्शन जाते हैं यहीं पे समझ लेते हैं, टेबल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रंटल लोब नज़दीक पड़ता है तो लिम्बिक सिस्टम और फ्रंटल लोब के कनेक्शन इस दोनों में जाएंगे, एंटीरियर ग्रुप और मीडियल ग्रुप। यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम के कनेक्शन जाएंगे और यहाँ पे हाइपोथैलेमस के कनेक्शन जाएंगे नीचे से। फिर यहाँ पे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ग्लोबस पेलुडस एंड पुटामेन, ये फाइबर यहाँ पे नज़दीक पड़ते हैं। यहाँ पे आएंगे बहुत दूर से VL प्लस VI, बहुत दूर कहाँ पे, सेरेबेलम, बिल्कुल पीछे से। तो इतनी लंबी जर्नी सीधे तो नहीं करेंगे, तो बीच में स्टेशन आएगा कौन सा, रेड न्यूक्लियस, सेरेबेलम, फिर रेड न्यूक्लियस, फिर VL एंड VI, डेंटेटो रूब्रोथैलेमिक फाइबर्स। ये हो गया सेरिबेलम। फिर ये पूरा वीपी के दोनों टुकड़े VPL एंड VPM, ये हो गए सेंसरी फाइबर्स। तो इसमें पूरी स्पाइनल कॉर्ड में से लोअर लिम हेड एंड नेक के अलावा पूरा, एक्सेप्ट हेड एंड नेक, बिलो हेड एंड नेक एवरीथिंग फ्रॉम द बॉडी गोज टू VPL। और हेड एंड नेक में से जो एफरेंट आए दैट गोज टू VPM। अब 4 लेमनिस्कस याद करो, मीडियल, ट्राइजेमिनल, स्पाइनल एंड लेटरल, MTSL। तो मीडियल एंड स्पाइनल पहला और तीसरा, मीडियल एंड स्पाइनल लेमनिस्कस गोज टू VPL, ठीक है। फिर दूसरा दैट इज ट्राइजेमिनल ओनली गोज टू VPM। और चौथा लेटरल, ये यहाँ पे कहीं नहीं है, लेटरल लेमनिस्कस इधर है, ऑडिटरी पाथवे एंड MGB। ध्यान रखिए चारों लेमनिस्कस को कभी भी एक बार डायग्राम में ड्रॉ कर दिया, बोल दिया, फिर उसको भूल जाने का, उसके टर्मिनेशन बहुत ही डिफरेंट है। किसी को एक जगह पे मिक्स मत करना, चलते हैं साथ में सेक्शन में फिर बहुत दूर चले जाते हैं। मीडियल अगेन, मीडियल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस 2 goes to VPL, trigeminal lemniscus goes to VPM and lateral lemniscus goes to MGB। चलिए बात हो गई। यहाँ पे आया ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, ठीक है, दैट इज जनरल सेंसरी, जनरल विसरल एफरेंट। तो स्पेशियल बच गया, टेस्ट तो वो भी यहाँ पे आएगा। हेड एंड नेक में अपनी टंग होती है, टंग में अपने टेस्ट फाइबर होते हैं, तो दैट टेस्ट फाइबर ऑल्सो कम्स टू VPM, दैट इज कॉल्ड सोलिटेरियस न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस।
सोलिटेरियोथैलेमिक ट्रैक्ट STT फ्रॉम टेस्ट बर्ड टू न्यूक्लियस ट्रैक्ट सोलिटेरियस, और यहाँ से ऊपर VPM, ठीक है। फिर ये रेटिकुलर ग्रुप का है, तो उसमें बाकी बचा कुचा सब यहाँ पे आएगा। रेटिकुलर फॉर्मेशन, लिम्बिक सिस्टम और असेंडिंग रेटिकुलर पाथवे। फिर पेन वाले पाथवे, नोसिसेप्टिव, वो सब जाएगा रेटिकुलर में, जो अपने को पले नहीं पड़ता, कभी किसी को नहीं पले पड़ता, और अभी भी जिसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, स्लीप, रेटिकुलर सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, इमोशन, एवरीथिंग, ये पूरा जाएगा नॉन स्पेसिफिक रेटिकुलर ग्रुप में, जिसमें पेन भी आता है। पेन क्यों होता है, किस बात का होता है, कब होता है, क्यों होता है, कब तक रहेगा, पेन का किसी को पता नहीं चलता। तो जो पता नहीं चलता वो पेन फाइबर रेटिकुलर में ही चलते हैं, कभी समझ नहीं आएगा। और ये हो गया मीडियल ग्रुप, तो इसमें अपने हाइपोथैलेमिक कनेक्शंस और उसके रिलेवेंट कनेक्शन है। ये हो गया एंटीरियर ग्रुप, जिसमें रिसेंट मेमोरी और इमोशन, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे आता है। चलिए, इससे सिंपल नहीं हो सकता, जल्दी से चले जाते हैं हाइपोथैलेमस में, क्योंकि न्यूक्लियाई की ही बात चल रही है। अरे कहाँ गया? So hypothalamus, below this hypothalamic sulcus, ये पूरा हाइपोथैलेमस हो गया। इसके हम 4 डिवीजन करेंगे, 4 रीजियंस। तो पूरी स्टोरी की शुरुआत ये 4 रीजियन के नाम से होती है। प्रीऑप्टिक, सुप्राऑप्टिक, ट्यूबरल, मैमिलरी। नाम की शुरुआत नीचे वाले पार्ट से ही होती है। नीचे वाले पार्ट के नाम ऑप्टिक, काइज़मा ऑप्टिक ट्रैक्ट, ट्यूबरल रीजन ऑफ पिट्यूटरी, मैमिलरी रीजन। तो ये हो गया प्री ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक, ट्यूबरल, मैमिलरी। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इस पूरे डायग्राम को 2 पार्ट में बना दूंगा, लेटरल जोन अलग से और मीडियल जोन अलग से, क्योंकि इस डायग्राम में लेटरल और मीडियल दोनों मिक्स डाले हुए हैं। कभी कभी डिस्क्रिप्शन के मैच नहीं करते, तो हाइपोथैलेमस दिखाना 3D में, अगर कुछ 3D है तो पॉसिबल है, इसमें कोशिश की है, बट इट इज़ नॉट इवन सफिशिएंट। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो क्या दिखता है? लेटरल और मीडियल का फंडा एक और डायग्राम में है हमारे पास। सी, हाइपोथैलेमस ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एंटीरियर टू पोस्टीरियर। हमने अभी जो देखे हमने जो 4 रीजन के नाम देखे, दिस 4 रीजन इज एंटीरो पोस्टीरियर डिवीजन फ्रॉम फ्रंट टू बैक, ठीक है। अब हम राइट और लेफ्ट की बात करें तो ये नाम होते हैं मीडियल जोन और लेटरल जोन। मीडियल जोन दैट इज योर थर्ड वेंट्रिकल की जो लेटरल वॉल है, थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल वॉल नीचे, दैट इज योर मीडियल जोन इन हाइपोथैलेमस। थोड़ा सा और लेटरली जाए तो दैट इज लेटरल जोन। इट मीन्स पूरे, ये सपोज दिस इज योर राइट हाइपोथैलेमस, तो इस साइड में अपना थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल वॉल दैट इज मीडियल जोन ऑफ हाइपोथैलेमस। फिर इससे और लेटरली जाओ तो लेटरल जोन, तो पूरा हाइपोथैलेमस, दिस इज मीडियल जोन एंड दिस इज लेटरल जोन। तो जो न्यूक्लियाई के नाम है, मीडियल जोन के नाम अलग है और लेटरल जोन के भी नाम अलग है। कुछ कुछ न्यूक्लियाई इन दोनों में जुड़े होते हैं, दैट इज कॉमन बिटवीन मीडियल एंड लेटरल।
यही तो पंगा है। और इसके एंटीरो पोस्टीरियर जो डिवीजन की है, दिस इज प्री ऑप्टिक, दिस इज सुप्रा ऑप्टिक, दिस इज ट्यूबरल एंड सबसे पीछे मेमिलरी। दोनों जोन के बीच में से दो फाइबर निकलते हैं फ्रॉम मेमिलरी बॉडी, एफरंट्स टू मेमिलरी बॉडी फ्रॉम फॉर्निक्स। ये हो गया मेमिलरी बॉडी के एफरंट फ्रॉम द फॉर्निक्स। इन efferents from mammillary body, this is mammillothalamic tract, it goes to anterior thalamic nucleus। VA और anterior दोनों में ये mammillothalamic tract जाता है। So this is something schematic। अब न्यूक्लियाई के जो जोन है, जो नाम है, प्री ऑप्टिक, इसमें लेटरल और मीडियल, फिर सुप्रा ऑप्टिक, इसमें भी 4 नाम दिए हैं। तो 2 नाम अपने को पता है जो ये इसमें दिखते हैं, सुप्रा ऑप्टिक एंड पेरावेंट्रिकुलर। इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ पे है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सुप्रा ऑप्टिक एंड पेरावेंट्रिकुलर डायरेक्टली कनेक्ट्स टू posterior pituitary, supraoptico hypophyseal tract, paraventriculo hypophyseal tract। बीच में जो रह गया that is anterior nuclei। तो 2 रीजन हो गए, प्री ऑप्टिक इसमें ये 2, सुप्रा ऑप्टिक इसमें 4 चीजें, सुप्रा ऑप्टिक, पेरावेंट्रिकुलर प्लस 2 एंटीरियर, राइट एंड लेफ्ट। ट्यूबरल रीजन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इट इज अबव ट्यूबरो दिस पार्स ट्यूबरालिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ट्यूबरल रीजन है, उसमें अपने आर्क्वेट न्यूक्लियाई है, दिस इज आर्क्वेट, दिस इज डोर्सल, एंड ये 2 हो गए VM DM, वेंट्रोमीडियल डोर्सोमीडियल। These are the 4 nuclei in tuberal region। तो ट्यूबरल रीजन में आर्क्वेट में से भी यहाँ पे जाएगा ट्यूबरो इन्फंडिब्युलर ट्रैक्ट। मेमिलरी रीजन, ठीक है, इसमें 2 टुकड़े हैं, मेमिलरी के 3 टुकड़े, मीडियल, लेटरल और एंटीरियर, इसमें नहीं दिखता, मीडियल, लेटरल एंड एंटीरियर मेमिलरी न्यूक्लियाई। पोस्टीरियर के 2, राइट एंड लेफ्ट, मीन्स मीडियल जोन एंड लेटरल जोन दोनों में पोस्टीरियर बिछाएगा। नहीं समझ आता है मुझे पता है, सुनिए, बार बार सुनिए, पॉज करिए, और जहाँ पे भी कंफ्यूजन है पढ़िए, देखिए और फिर डिस्कस करिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कुछ चीज़ें रह गई है, तो हम रूबरू मिलेंगे तब करेंगे। पिट्यूटरी तो आपको समझ आ ही जाएगी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हम बाद में रिवाइज कर लेंगे, उसके कनेक्शन भी देख लेंगे। एक लेंटिफॉर्म एंड सबथैलेमस दोनों अपना बाकी रहता है। तो इसके बाद हम वेंट्रिकल्स ख़त्म करेंगे, फिर CSF सर्कुलेशन करेंगे, और बाद में वापस हम आएंगे सबथैलेमस और लेंटिफॉर्म करने के लिए, ताकि और एक बार रिवीजन मिल जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।